से ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر، اور پس پردہ علماء کرام سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں اور آگے کے لیے ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں رمضان مبارک سے متعلق سوالات۔ دیکھیں ہر کسی ذہن میں ہوتے ہیں، میرے ذہن میں بھی ہوتے ہیں سوالات، اور وہ پیچیدگی سلجھانے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں جو ہمیں شریعت مطہرہ کی شفاف ٹرانسپیرنٹ روشنی کے اندر ہمیں جو ہے سمجھاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اللہ نے کیا کہا اس سوال سے متعلق، اس کا رسول کیا فرماتا ہے، اور اس کے رسول کے خدام کیا کہتے ہیں، مفسرین اور شارحین کیا کہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے آپ کی سوالات کے جوابات علماء کرام کے ساتھ۔ کالرز کو شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں کال کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ جی بھائی، آپ اتنی دیر سے آتے ہیں آپ لوگ، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح نماز میں سجدے کے لیے پیشانی ننگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح آج کل جو کووڈ-19 کی وجہ سے ماسک وغیرہ لگایا ہوتا ہے تو اس میں ناک کے لیے کیا حکم ہے، کام ہے کہ ناک ننگی ہونی چاہیے، ماسک ہٹا ہونا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، پیشانی آپ نے کہا ہونی چاہیے، تو کیا ناک پہ بھی ماسک ہٹا ہوا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے آپ کا سوال علماء سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، جب ہم قرآن مجید تلاوت کر رہے ہو، اذان ہو جائے تو ہمیں تلاوت روکنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، دیں گے۔ اور میرا دوسرا سوال پوچھئے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، آپ کا دوسرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل کریں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ساڈے کول ایک مسجد ہے، جی جی، اس وچ جدوں بھی اذان ہوندی ہے کتے بھونکدے نے۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی دوسرے مسلک دی مسجد ہے، اچھا وہ مسجد والے کہندے نے کہ انہاں کتیاں نوں ساڈی مسجد دی سمجھ آ گئی ہے، اچھا، ساڈی اذان دی سمجھ نہیں، اس گلے بھونکدے نے، اور کسی بھی مسجد تے اذان ہوے تے کتے نہیں بھونکدے۔ عجیب و غریب سی بات تھی بھائی، میرا خیال ہے اس کو نہیں مفتی صاحب زیر ذکر لایا جائے۔ بھائی یہ سوال نہیں ہے اور یہ اعتراض ہے، اعتراض نہ کیا کیجئے۔ ہاں بہرحال مفتی صاحب اس کی اصلاح کریں گے آپ کو، ہم یہاں پہ فقہی سوالات چاہتے ہیں، آپ وہ سوال کیا کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے نا لکوریا کی، جی جی، تو وہ روزے رکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل میری بہن۔ دوسرا یہ کہ جو نماز نہ پڑھ سکے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات پوچھ لوں گا مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے میری بہن؟ سوال یہ ہے کہ والد کی وفات کے بعد بیٹیاں اپنے بھائیوں کو اپنی مرضی سے دے دیں۔ نہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا، آواز کٹ رہی ہے۔ والد کی وفات کے بعد، جی جی، والد کی وفات کے بعد بیٹیاں اپنا حصہ بیٹیاں اپنی مرضی مرضی سے اپنے بھائی کو دے دیں، یہ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بھائی کو حصہ دے دیں، اپنے بھائی کو حصہ دے دیں اپنی مرضی سے، یا کسی کو دے دیں بیٹیاں والد کی وفات کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے ایک پالیسی نکالی ہے کہ اس میں آپ لون لے سکتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل بتائیں گے۔ اور دوسرا سوال، جو ہم یہ اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس رکھتے ہیں اس کے اوپر منٹس وغیرہ آتے ہیں، کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا سود میں آتے ہیں؟ سر یہ کمپنیز کی طرف سے پروموشنز ہوتی ہیں، اکاؤنٹ میں بیلنس مینٹین کرنے پر فری منٹس کا تحفہ ملتا ہے اور دیگر انعامات ملتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی، اور نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔
سر یہ دعا ہے جی، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت. جی 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 یہ جو تراویح پڑھتے ہیں تو یہ عظمت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہڈی، اور عظمت جو ہے وہ عظمت سے ہے، بڑائی اور بزرگی. تو کیا یہ مساجد میں جو لکھا ہوتا ہے، یہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں عربی کے، تو ان سے پوچھنا ہے کہ یہ عظمتیں ہے یا عظامتیں ہے؟ عظمتی یا عظمتی. ٹھیک ہے جی جی تے تو خیر ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. اچھا جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو شرعی معذور ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ اذان دے سکتا ہے، اچھا اس کے بعد اقامت کہہ سکتا ہے؟ شرعی معذور ٹھیک ہے، شرعی معذور جو ہے اقامت کرا سکتا ہے یا اپنا اذان دے سکتا ہے؟ شرعی عذر کیا ہے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ مطلب وہ جسمانی قطرے آتے ہوں مثلا، مطلب ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اس طرح کا. ٹھیک ہے جی اس کے جسمانی عذر. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے جی پوچھئے. واش روم سے بندہ آئے یا ہاتھ ناپاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے کہ ویسے ہی اپنے پانی سے ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر کو دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ کیا حال چال ہے آپ کے بھائی؟ میں بہت ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے. آپ بتائیے کیا سوال؟ الحمدللہ. اچھا سوال میرے دو ہیں اور ایک میری سجیشن بھی ہے. پہلے سجیشن دے دیتا ہوں کہ آپ جو موضوعات روز رکھتے ہیں اس میں کرپشن کا موضوع اگر رکھیں گے انشاءاللہ، پھیلتی ہوئی کرپشن اور پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے. اور بتائیے. دوسرے سوال میرے دو ہیں اور وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت چاندی پہ ہے یا سونا پہ؟ ٹھیک ہے زکوٰۃ کی فرضیت بالکل ٹھیک. چاندی پہ. دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جب فرض ہوئی تو یہ میرا گمان بھی ہو سکتا ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، غلط بھی میں ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ چاندی 52 اور مطلب سونا 7 7.5. جی تو اس کی جب فرضیت ہوئی تو یہ ایک دوسرے کے کمپیٹیبل تھے، یعنی ان کی پرائسز ایک دوسرے کے برابر تھیں اس وقت، یا کیا مطلب یہ چونکہ لاجیکل تو تبھی ہوتا ہے نا کہ جب یہ کمپیٹیبل تھی. جی بالکل. یہ سوال جی آپ کا جو سوال ہے آج کل تو مطلب 1 تولہ سونے میں بھی وہ 52 تولے وہ چاندی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس پہ پلیز روشنی ڈال دیجیے. اچھا میرے بھائی بالکل یہ سوال اور یہ زیر ذکر سابقہ ماہ سال میں بھی آ چکا ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب جب میرے ساتھ یہاں بیٹھتے تھے تب بھی انہوں نے بھی فرمایا تھا اس سے متعلق کہ یہ اٹ سیمز اٹ واز ایکول. اور اب جو ہے وہ تو آسمان زمین کا فرق ہے. 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا. تو ظاہر ہے اس پہ بات ہونے میں علماء کرام سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے کال کی ہے. آئی جسٹ اپریشیٹڈ یو سر. تھینک یو سو نائس آف یو. سر آئی جسٹ اپریشیٹڈ یو کہ سر اس وقت میں گھر میں بیٹھا وائف کے ساتھ اور میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا. میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ سوالات کا یہ ڈیوریشن چل رہا ہے. لیکن سر اس دور میں جو آپ جوانوں کے مسائل اور سب کے مسائل سن رہے ہیں، ان کے جواب دے رہے ہیں سلمان صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹڈ یو. سو نائس آف یو. کنٹینیو رکھیے گا رمضان کے بعد بھی. انشاءاللہ اس چیز کی اب معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے کہ اگر جو لوگ ڈیلی بیسس پہ نہیں ان چیزوں سے دور ہے فقہی مسائل میں. تو آئی ریئلی اپریشیٹڈ سلمان صاحب اینڈ یور ٹیم. تھینک یو. تھینک یو سو مچ میرے بھائی، بہت شکریہ. ہمارا حوصلہ بڑھا آپ کی بات سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ غسل کرنے کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، دیں گے آپ کے سوال کا جواب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر؟ بتائیے. السلام علیکم. بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ ساری ٹائم نہ اٹھ سکیں تو ایسے ہی روزہ رکھ لے تو کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. مزید کچھ سوالات، سارے کے سارے جوابات اس وقفے کے بعد. رکھ سکتے تھے. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم آپ کا ایک بار پھر نعمت افطار کی نشریات میں. اور
सेगमेंट है बज़्म उलमा, और इस सेगमेंट में जिस तरह हम लास्ट प्रीवियस में ले रहे थे लाइव टेलीफोन कॉल्स और आपके सवालात, इसमें भी कुछ टेलीफोन कॉल्स होंगी, कुछ सवालात होंगे और फिर इंशाल्लाह बितरतीब तमाम सवालात के जवाबात देंगे मुफ्तियान कराम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? लाइन ड्रॉप हो गई, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हैं हमारे साथ? जी चलें हम जवाबात की तरफ आ जाते हैं, फिर बाद में दरमियान में या आखिर में कॉल ले लेंगे। जी मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आइएगा। अच्छा, भाई ने ये सवाल किया है कि सजदे के लिए पेशानी ज़ाहिर है कि ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि अगर दबीज़ कालीन हो तो जहाँ ज़मीन की सख्ती महसूस ना होती हो तो वहाँ सजदा नहीं होता। ऐसी कालीन हो या ऐसी चटाई या ऐसी दरी हो कि जहाँ आसानी से ज़मीन की सख्ती महसूस हो रही है तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं सजदा होगा। इसी तरीके से नाक की हड्डी, देखिए इन्होंने जो पूछा वो कोविड-19 के तनाजुर में पूछा है कि किसी ने मास्क पहना हुआ है। अव्वल तो आम रूटीन में मास्क के साथ नमाज इस तरह नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, जहाँ पर सख्त अगर खुदा ना खास्ता वहाँ फैला हुआ है ये वायरस वगैरह वबा वगैरह वहाँ आपने पहना हुआ है तो याद रखें कि उस मास्क की वजह से नाक की हड्डी ज़मीन पर ना लगे, ये नहीं होता। सही बात। हाँ, वो मास्क अगर पहना भी है लेकिन हड्डी हाँ, लगती है। वो अगर मास्क पहना भी हुआ है तो वो नाक की हड्डी आराम से ज़मीन पर लग जाती है, ज़मीन की सख्ती भी महसूस होती है, तो सजदा आपका हो जाएगा। एक ये सवाल आया कि कुरान की जो है वो तिलावत अगर कर रहे हों आज़ान हो जाए तो बेहतर यही है कि वो कुरान की तिलावत भी अगर कर रहा है तो रुक जाए और आज़ान सुने और उसका जवाब दे। अच्छा, इसके साथ एक सवाल ये हुआ कि सुरमा लगाने से रोज़े का हुक्म क्या है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुरमा जो है वो लगाना आपकी सुन्नत भी है, लगाने के लिए आपने फरमाया भी है, तो लिहाजा सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि ये नस से साबित है। लेकिन ड्रॉप्स डालने से, मेडिसिन डालने से आँख में रोज़ा टूट जाता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी अल्लामा साहब, ये एक बहन ने पूछा है कि उनको लिकोरिया का मर्ज़ है तो उसकी वजह से नमाज रोज़ा वो कर सकती हैं। तो बिल्कुल ये चूँकि मर्ज़ है और ये शरई माजूर हैं, लेकिन उसकी वजह से ना रोज़ा छोड़ेंगी ना नमाज छोड़ेंगी। हाँ, ये है कि हर नमाज के लिए वो ताज़ा वज़ू कर लेंगी। अगर वज़ू हो भी तो वक्त के जाने के साथ साथ उनका वज़ू टूट जाएगा। रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता, ना रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा और ना वो नमाज छोड़ेंगी इस मर्ज़ की वजह से। ठीक है। इसी तरह उन्होंने पूछा कि जिसकी नमाज नहीं होती है क्या उसका रोज़ा भी नहीं होता। मुराद ये है कि अय्याम हैज़ के अंदर तो बिल्कुल नमाज नहीं है तो फिर रोज़ा भी नहीं है बीमारी की वजह से। बिल्कुल ठीक है। ये बहन ने पूछा है कि वालिद उनके फ़ौत हो गए और अपना हिस्सा अपनी मर्ज़ी से अपने भाई को देना चाहती हैं। देखिए बहरहाल शरई एतबार से आप उसकी मालिक हैं, अगर वो आपको हिस्सा मिल जाता है तो आप किसी को भी दे सकती हैं। लेकिन उमूमी तौर पर होता ये है कि भाई वगैरह किबला मुफ्ती साहब या तो प्रेशर डालते हैं या फिर माँ बाप फौतशुदा माँ बाप की कस्में देते हैं कि ए ज़मीन सड़ी है तो जनाब रेन दो, वो कहाँ लेके जाओगे इसको, या होगा। फिर ये भी कहते हैं कि तुमने ले लिया तो फिर मुंह देखना नसीब नहीं होगा और मैयत पे नहीं, जनाजे पर नहीं, हमारा खत्म। यानी दो तीन तरीके होते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं हज़रत कि ये दीनी लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल करते, सब करते हैं। हाँ सब करते हैं। दीनी लोगों को नहीं करना चाहिए, जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना वो भी कर रहे होते हैं। 100% आपने सही फरमाया। यानी एक तो वो तबका है जो दीन से नाबालद है, लेकिन जिन्होंने दीन का कैमोफ्लाज किया हुआ है और हर साल हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं और हातम ताई और लंगर कर रहे हैं, बहनों का और बेटियों का हक मारने के अंदर वो भी सफ़े अव्वल के अंदर उन्हीं वडेरों की तरह नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अंदर ये मजहबी वडेरों में और उनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो ये तो कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसका तो एक लम्हे का जवाब ये कि दे सकती हैं आप, लेकिन ये देख लीजिए कि ये मर्जी भी है या फिर तरीके से आपको प्रेशर किया जा रहा है। अगर प्रेशर है तो फिर वो नाजायज़ कर रहे हैं, नाहक कर रहे हैं और ये बहन का हक मार रहे हैं, उनको अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाब देना पड़ेगा। सही। ये एक सवाल पूछा है कि जो लोन वगैरह हुकूमत दे रही है अगर वो सूदी निज़ाम है और सूदी कर्जा दे रही है उस पर सूद है तो बिल्कुल वो नाजायज़ है। ठीक जी। वो आज़मा से शुरू। जी सलमान भाई, ये तस्बीह तरावी में
आज़मा और आज़ामा, तो ये इसमें बेहतर यही है। और आज़मुन का मतलब हड्डी है और आज़मा ये असल लफ्ज़ है, और तस्बीह तरावी में इसी को आम तौर पे ये गलती पाई जाती है आवाम में। तो सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ती वल आज़मती वल हैबती वल कुदरती, इसके मुताबिक आम तौर से लोग आज़मती पढ़ते हैं। जी जी, सही है। अच्छा, शरी माजूर जिसको पेशाब के कतरात वगैरह आते हैं, तो वो अज़ान और इकामत से गुरेज किया जाए उसको। नमाज तो वैसे भी अपने जैसों की वो जमात करा सकता है जो उसी जैसे शरे किसी उज़र की वजह से माजूर है, उनकी जमात करा सकता है, लेकिन अज़ान और इकामत में ये गुरेज करे इससे। फिर इसी तरह ज़कात की फ़र्ज़ियत में जब ज़कात फ़र्ज़ की गई तो उस वक्त यकीनन सोने और चांदी की कीमत वो बराबर बराबर थी, और फिर ज़माना गुज़रता गया तो इस कीमत में फ़र्क आता गया। और आज भी हम देखते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव, कभी चांदी की कीमत में कुछ ज़्यादती आ जाती है, लेकिन सर फिर भी आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। बेशक बेशक। तो क्या इसका सोल्यूशन? और इसमें अगर किसी के पास माल मौजूद है, सोना कुल्लियतन सोना है तो सोने की सूरत में 7.5 तोले सोना है, और चांदी है तो 52.5 तोला चांदी। लेकिन अगर कोई भी मुश्तरका माल मौजूद है, कुछ सोना है कुछ चांदी है, या माल तिजारत है, तो फिर इन सोना या चांदी दोनों में से जिसका निसाब कम में बनता होगा, फुकरा का ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता होगा, तो उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट करके ज़कात की अदायगी की जाएगी। जैसे आज चांदी का है तो उसके मुताबिक ज़कात की अदायगी की जाएगी। सही सही। 2 कॉलर्स हैं मुसाब, उन्हें मैं शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है भाई? जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ इरतबाद से। मेरा सवाल है कि अगर वाशरूम और गुस्लखाना दोनों एक ही जगह पे हो, सही, और वाशरूम थोड़ा हाइट पे हो, तो क्या हम वहाँ पे नमाज के लिए वुजू कर सकते हैं? ठीक है, और क्या सवाल? नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सलमान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी बहन, आप ठीक है? जी भाई, सवाल आपसे ना 1 साल के बाद कॉल मिल रही है, पिछले रमजान को मिली है और अल्लाह खुश रखे। बस असल में कॉलर्स बहुत ज्यादा है ना मेरी बहन। अब मैं सवाल की तरफ आती हूँ। आइए भाई सवाल मेरा पहला ये है जी भाई, सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ जी। एक हमारे सूरत के अंदर आता है दुरूद शरीफ है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी जी। तो क्या इस दुरूद पाक को हम नमाज के अंदर रकत में बतौर तलावत जो है वो कर सकते हैं? मतलब ये वाली आयत पढ़ सकते हैं या नहीं? सही है, बिल्कुल। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये इस्लाम में क्यों मर्द को हुक्म है कि वो अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखे? अच्छा, मर्द क्या लॉजिक है, क्यों हुक्म है और इसमें लॉजिक क्या है? ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल। एक और सवाल है जी, अगर टाइम हो प्लीज पूछिए। सर, अगर नमाज का भी टाइम हो रहा हो और हमारे घर में गेस्ट आए हुए हों, बैठे हुए हों, और नमाज का वक्त निकलता जा रहा हो, तो इस सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि आप बैठिए हम नमाज पढ़ लें, तो ये बात कोई रियाकारी में तो नहीं आ जाएगी? ठीक है, बिल्कुल मेरी बहन। और सवाल है सर छोटा सा कि नीयत का कैसे पता चले कि साफ है? क्योंकि लोग कहते हैं कि इबादत अलग चीज है, नीयत तो नजर ही नहीं आती। हम जी नीयतों को मानते हैं, इबादत तो क्या है? हाँ तो सही। अब वो जो नीयतों को मानते हैं उनको नीयत नजर भी तो नहीं आती, नीयत तो बातिन। ये कह रही है नीयत साफ कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि नीयत साफ है? ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बहन बहुत गरीब है, उनके 6 बच्चे भी उसको खर्चा नहीं देता, तो क्या मैं उसको खतरा दे सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब। एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या सवाल है आपका? नमाज के वाले सवाल, नमाज के वाले पूछे ना सवाल भाई। कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए नहीं नमाज में? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए कि जिसमें जमात हो रही होती है। अच्छा, जमात के पीछे कह रहे हैं आप? पूरा सवाल खोल के। हाँ सही है, सही है। जमात का हुक्म आपको बताते हैं, कुछ और है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल है? सलमान गोल साहब, क्या ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। क्या सवाल है भाई? अच्छा, सवाल मेरा सर ये है कि जिस तरह कपड़े नापाक हो जाते हैं, उन कपड़ों को धोने का तरीका जिस तरह मुफ्तियान साहब ने कहा था कि टब से ऐसे निकालने हैं, उसमें कलमा भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, बताएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बताएंगे। नाज़रीन कराम, एक वक्फा लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जवाबात की तरफ आते हैं। जी, एक बार फिर नेमत इफ्तार में खुश आमदेद। और वक्त है ये बज़्म उलमा का। सवालात आपके जमा हुए हैं, लास्ट सेगमेंट है हमारा। इसमें इंशाल्लाह आपके लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जो लिए गए हैं सवालात,
उलमा इकराम देंगे जवाब। जी मुफ्ती। अच्छा, एक सवाल छूट गया है जी, कौन सा? किसी ने दिया नहीं। मस्जिद में आज़ान होती है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो अब मामला ये है कि अब कौन सी मस्जिद है, क्या है, लेकिन इसमें किसी को दोष देना कि जी अच्छा, अब वो क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जी हमारी अजान उनको भी समझ में आ रही है। बताइए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हो कि देखो भाई जब भी अजान देते हैं कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत चीज़ है बिल्कुल। अजान तो कुत्ते का भौंकने का अजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इतना ज़रूर है कि फरिश्तों को जब मुर्गा देखता है तो वो अजान देता है, और शैतान को जब गधा देखता है तो वो डिंचू डिंचू करता है। इसके अलावा कोई ऐसा कुत्ते का कोई इस तरह मामला नहीं, ना किसी को हम दोष दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हुकूमत यानी बैंक में अकाउंट हो तो वो रकम देते हैं। अब इस मामले में ये पूछा गया, अब मसला ये है कि इसमें मुख्तलिफ आरा है। अभी हमारा ब्रेक में भी मशवरा हो रहा था तो एक आलिम दीन ये भी फरमा रहे थे कि इसमें जो है वो बतौर कर्ज जो है वो देते हैं, बतौर कर्ज वो लेते हैं और उस पर ये कुछ ना कुछ तोहफा देते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हदीस पाक में है कि कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, कि हर वो कर्ज जो नफ़ा खींच कर लाए वो सूद है। अगर बतौर कर्ज देते हैं तो ये सूद है, और अगर बतौर कर्ज नहीं देते ऐसे ही रकम रखी हुई है और वो तोहफतन इस तरह कोई अनाउंस करते हैं तो उसमें कोई शरीक बात नहीं। लेकिन बहरहाल इसकी शराइत, इसकी कंडीशंस देखनी चाहिए कि इसकी क्या शराइत है, क्या कंडीशंस हैं, और जो रकम ये रखते हैं उसको ये क्या दर्जा देते हैं, क्या इनकी स्टेटमेंट उस मामले में क्या है। इसके बाद जो है वो ये पूछा कि वॉशरूम से वापस अगर आते हैं तो कलमा पढ़ना चाहिए पाक होने के लिए। भाई वॉशरूम में आपने जो है वो फारिग हो चुके हैं, आपने हाथ धो लिए, नमाज पढ़नी, वज़ू कर लिया, तो अब कलमा वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वॉशरूम में तो कलमा पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, जायज़ नहीं है। सही जगह। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि ज़कात की जो फ़र्जियत है वो सोने से है या चांदी से है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निसाब बताया ना तो वो दोनों से बताया है। फ़कत सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला है, फ़कत चांदी का निसाब है वो 52.5 तोला चांदी है, और मिक्स निसाब अगर है तो देखा जाएगा कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर बनता है या नहीं। अब हमारे यहाँ साहिब बार शरीफ ने एक और बात भी लिखी है, वो कहते हैं फरमाते हैं कि हाजत असलिये के अलावा अगर आपके पास इतनी रकम बनती है कि जो 200 दराहिम के बराबर हो, 200 दिरहम किसी के पास है, तो वो ज़कात देगा तो नहीं, लेकिन वो ज़कात लेगा भी नहीं। बिल्कुल, उसको ज़कात लेनी भी नहीं चाहिए ताकि गरीबों का हक ना मारा जाए। अब यहाँ पर एक बात याद आई मुझे कि यहाँ इस मामले में गरीबों का हक ना मारा जाए, लेकिन जो तंजीमें, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मुख्तलिफ मद्दात में ज़कात जो है वो लेती हैं, तो ज़रा उनको भी ख्याल करना चाहिए कि मुआशरे में गरीब बसता है, उनका हक मारा नहीं जाना चाहिए। सही बात। जी अलामा साहब। जी, एक भाई ने पूछा है कि गुस्ल के बाद क्या वज़ू कर सकते हैं। देखिए, पूरा गुस्ल कर लिया आपने, उसमें आपके आज़ाए वज़ू पर भी पानी बह गया है, वरना इसका असल तरीका मुस्तहब ये है कि गुस्ल से पहले आप वज़ू कर लें, मुस्तहब है। जी हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने नहीं किया वज़ू, आपने पूरा गुस्ल कर लिया तो आपका ऑटोमेटिकली वज़ू भी हो गया। अच्छा अलामा साहब, एक ज़रा सी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि महज पानी डाल लिया, जी मतलब बंदा जल्दबाजी में महज अपने पूरे बदन पे पानी बहा लिया तो वो वज़ू से है, बिल्कुल, वो आकर उसका वज़ू भी हो गया, उसका गुस्ल हो गया, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये अवाम के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि फ़र्ज़ गुस्ल उतारने के लिए उनको कुछ पढ़ा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, तो सिर्फ पानी के बह जाना, किसी ने तालाब के अंदर डुबकी लगा दी और बाहर आया तो वज़ू से पूरे आज़ाए जिस्म पर पानी हो गया, खत्म। बहुत अच्छी बात, ठीक है, आसानी साहरी नहीं कर सका, और रोज़े के बारे में तो साहरी करना सुन्नत मुबारका है, लेकिन नहीं भी की है और आपकी नीयत है तो आपका रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। एक बहन ने पूछा है कि आयत दुरूद जो है उसको नमाज के अंदर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आयत दुरूद एक मुकम्मल आयत है, तो कोई भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा फ़क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान, उस पर से आयत दुरूद को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है। उसके बाद या तो अगली आयत पढ़ेंगे इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू, या तो फिर रुकू के अंदर चले जाए। शलवार के बारे में पूछा है कि शलवार जो ऊपर मर्दों को हुक्म दिया गया है, इसकी लॉजिक क्या है। देखिए, एक तो बुनियादी तौर पर लॉजिक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आक़ा दो जहां सल्लम ने हुक्म फरमाया है, अल्लाह रसूल का हुक्म ही सबसे बड़ी लॉजिक होती है। और दूसरा जो है नबी करीम सल्लम ने तकब्बुर से बचने के लिए फरमाया है कि तकब्बुर से इसमें बचने का होता है।
नमाज का वक्त भी और मेहमान भी हैं। नमाज के वक्त से मुताल्लिक़ पूछा था कि मेहमान बैठे हुए हैं, तो अब उनको बताना, पहली चीज़ तो ये कि उनको भी नमाज की तरफ तरगीब दी जाए और उनको भी नमाज की दावत दी जाए, और अगर इनकी तरगीब से कोई मुतासिर होकर नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इन्हें भी उसका सवाब अता फरमाएगा। सही। और अगर उनमें से कोई नहीं उठा तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बताना कोई रियाकारी के तौर पर नहीं है, और रियाकारी का मामला वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि अगर उस अमल में दिखलावा है, और यकीनन इनका दिखलावा नहीं है, अगर बगैर बताए उठ के ये आ जाएंगे तो फिर मेहमानों पर नागवारी और इस तरह की कैफियत तारी होगी। फिर इसी तरह कहते हैं कोई भी काम है हमारी नीयत अच्छी है। नीयत का मामला इन्होंने पूछा था कि नीयत कैसे पता चलेगा कि नीयत खालिस है या नहीं, तो ये एक कल्बी एक मामला है, और इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या किसी की टो में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी अमल खालिसतन अल्लाह के लिए करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाएगा। वो हमारा अमल अल्लाह के लिए हो, उसमें किसी को बताना, किसी को दिखाना कि नहीं मेरी नीयत सच्ची है, सही है, या मैं इस तौर पे नहीं कर रहा, ये जरूरी नजर तो नहीं आती ना मुफ्ती साहब। और फिर इसी से मुताल्लिक अल्लाह ताला का फरमान है ना कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम, कि ये ज़ाहिरी तौर पर अमल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में नहीं पहुँचता, कुर्बानियाँ या दीगर मामलात, वो दिल का जो एक तक़वा है, नीयत है और एक इखलास है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसको पहुँचता है। जी। फिर जमात में सूरह फातिहा इमाम की इक्तदा में पढ़ना, तो ये ना पढ़ा जाए, और इमाम की इक्तदा, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब तुम इमाम की इक्तदा करो तो इमाम बनाया ही इसलिए जाता है कि ताकि उसकी पैरवी की जाए। फ़किरातुल इमाम लहू किरात, उनके इमाम की किरात ही वो तुम्हारी किरात है। अगर इनफिरादी तौर पर पढ़ेंगे तो चूंकि ये वाजिबात नमाज में से है और किसी ने जानबूझ के छोड़ा तो नमाज ही नहीं होगी, और गलती से अगर रह गया तो आखिर में सजदा साहब लाजिम होगा। ठीक है जी मुफ्ती साहब। मजीद ये हुआ कि बहन गरीब है तो ज़कात दे सकते हैं या नहीं? भाई दे नहीं सकते, बिल्कुल देनी चाहिए। सबसे अच्छा, पहले हमारे आमतौर पर क्या है कि हम ज़कात देने के लिए बाहर ढूंढते हैं। सही बात। सबसे पहले अपने बहन भाइयों में देखें, अजीज़ों अकारिब में देखें, फिर उसके बाद पड़ोस में देखें, फिर उसके बाद आप अपने इलाके में देखें, डायरेक्ट बाहर ना निकलें। बिल्कुल सही। पहले यहाँ पर सराउंडिंग में नज़र घुमा लें। अच्छा, बहन भाइयों को या अजीज़ों अकारिब को देने से दो फ़वाइद हैं कि ज़कात भी आप उनको दे रहे हैं और सिला रहमी भी कर रहे हैं। इसी तरीके से सदक़ात का भी यही हुक्म है कि अपने करीबी अज़ और अक़रबा को देखा जाए, करीबी पड़ोसियों को देखा जाए, पहले उनको देखा जाए, फिर बाद में औरों की तरफ देखा जाए। सिर्फ अपने उसूल और फ़ुरूक़ को नहीं दे सकते, सईद को नहीं दे सकते, बाकी जो है ना बहन भाइयों को, इन तमाम को दिया जा सकता है। आपने एक जुमला भी आगाज़ के अंदर कहा था कि सूरत-ए-हाल ये बन गई कि तंजीमात को लोग इतना दे रहे हैं, चैरिटीज़ को दे रहे हैं, और माशरे में, सोसाइटी में से गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। यानी कुरान के मसारिफ मारा जा रहा है ना, बिल्कुल हक मारा जा रहा है, मसारिफ मौजूद है ज़कात के। आपकी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 50% करोड़ों की तादाद में 10-12 करोड़ लोग वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जैसे अजीज़ व अकारिब का कहा, पड़ोस का कहा, फलां का, उनको नहीं पहुँच रही है, और चैरिटीज़ जो है करोड़ों नहीं अरबों अंदर करके और उनको रखा हुआ है। मैंने एक बाकायदा तौर पे एक सोसाइटी के सदर को कहते हुए देखा, जनाब मैं सदर बनाऊं, जब मैं आया तो अकाउंट खाली था, अब मैं जा रहा हूं तो मैंने इतने करोड़ अकाउंट के अंदर छोड़ के जा रहा हूं। अबे भाई ये कि तुमने क्या किया, क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये गरीबों का माल आया था, तुम दे के जाते। अच्छा, इसको ऑनर समझते हैं कुछ लोग, जो है बिल्डिंगें खरीद लेते हैं, और कुछ लोग जो है दूसरी चीजों के अंदर लगा देते हैं। तो उसके बजाय ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अगर लेती भी हैं और सही काम भी करती हैं तो उन्हें उलमा से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए कि ये ज़कात की मद में हम कहाँ खर्च करें और कहाँ खर्च कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बिल्डिंग्स ली हुई होती है, पता ही नहीं होता, बाज़ औक़ात पैसा रखा हुआ है और दे नहीं रहे और रखा हुआ है अकाउंट में, तो ये भी बगैर किसी उज़्र के इस तरह रखा नहीं जा सकता। ज़कात की रकम जिस माल में होती है वो माल हलाक होता है, तबाह होता है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि कपड़े नापाक जो है वो पाक करने के हवाले से हमने बताया था, तो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? तो कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपने जिस तरह आपने बताया कि टब में आपने जो है वो एक मरतबा पूरा टब भर लिया, आपने कपड़े को उसमें डाल दिया, धो लिया, फिर 3 मरतबा इस तरीके से कर लें। और एक तरीका और भी है कि बड़ा टब है और आपने कपड़े डाल दी, उसको फुल भर लें,
ٹھیک ہے نا, اس کو بھرنے کے بعد کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور باقی وہ پانی بہنے دیے جانا چاہیے یہاں تک کہ پانی بہتے بہتے آپ کو لگ گیا ہے کہ بالکل پاک ہو چکا ہے, تو وہ پاکی کے حکم میں ہے. اچھا ایک چیز میں عرض کروں گا کہ وہ جو بہن کے سوال کے جواب میں کہ وہ ظاہر ہے کہ جو مینسز میں ہے تو وہ روزے نہیں رکھیں گی, وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی, لیکن روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی اور نماز کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب. مکمل ہو گئے سوالات. اچھا کیا مفتی صاحب آج ہمارے پاس جو ہے نا 2 جملے, صرف ہمارے پاس 1-1.5 منٹ بچے ہیں, میں چاہتا ہوں 2 جملے آپ تینوں کے میں شامل کر لوں. خواتین اور رمضان, یہاں پر یہ کہوں گا کہ اب آپ خواتین سے, اپنی ماں بہنوں سے کہ اب تھوڑی لاج رکھ لیں. ہم نے بہت کچھ خواتین کی فضیلت میں کہا ہے, آپ نے تو سب نے ان کے حق میں, بلکہ آپ ہر ولی کامل کے پیچھے دیکھیں تو ماں کی صورت میں خاتون نظر آتی ہے یا خاتون ماں کی صورت میں نظر آتی ہے. تو آج کے دور میں کہوں گا کہ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گئے تھے نا پڑھنے کے لیے تو 15 پارے سنا دیے تھے, اور قاضی ناگوری علیہ رحمہ نے کہا تھا صاحبزادے کہاں سے سنے, تو کہا کہ میں اپنی ماں کے وجود میں تھا, میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی, وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی, میں نے یاد کر لیا. تو ایسی مائیں کہ جو اپنے بچوں کو لوری دیں تو اللہ کی لوری دیں, اور ماں اپنے بچوں کی پہلی تعلیم یعنی تعلیم گاہ ہے, تعلیم و تربیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلی اکیڈمی بھی ہے, پہلا اسکول بھی ہے, پہلا کالج بھی ہے. تو ماں اپنی نسلوں کو جو سکھا سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا. اور میں آخری جملہ کہتا ہوں کہ جب کوئی مرد دین سیکھتا ہے, اس کے عقیدہ صحیح ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک آدھ شخص سور جائے, گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے دین, لیکن اگر عورت دین سیکھ لیتی ہے تو وہ نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے, ایک جملہ کیا ہوگا آپ کا؟ بس ایک جملہ یہی ہے, مفتی صاحب کی گفتگو کو میں مسلسل کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے پیچھے دیکھیں کہ ان کی والداؤں کا بہت بڑا کردار ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بچے کو یاد ہے, آپ پڑھنے کے لیے گئے اور جب ڈاکو نے سب کو لوٹ لیا اور آپ نے سامان دے دیا تو کہا کہ بیٹا تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا. اکبر. تو آج وہ مائیں ناپید ہو گئی ہیں جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے بھیجیں کہ میرے بیٹے حرام نہ لے کر آنا گھر میں, میرے بیٹے جھوٹ نہ بول کے آنا. آج تو مائیں کہہ رہی ہیں بس لے کر آ بیٹا, کہیں سے بھی لا, کسی کا گلا کاٹ کے لے کر آ, جو کچھ مرضی لے کر آ. تو جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھرانہ, ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو اگر وہ عزتیں اور وہ وقار لوٹانا چاہتے ہیں تو ماؤں والا لوٹنا پڑے گا. جی مفتی صاحب آپ 1-2 جملے. آج خواتین کے حوالے سے جس طرح گفتگو ہوئی تو خواتین کے لیے کامل اسوہ, جن کا اسوہ نمونہ ہے بالعموم تمام ازواج مطہرات اور بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, کہ شوہر کی جو بھی حیثیت ہے, مالی جو بھی اس کے معاملات ہے, اس کے مطابق گزارا کرنا سیکھیں. صحیح. اور اسی سے اللہ رب العالمین خانگی جو معاملات ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے, گھر وہ جنت کا گہوارہ بن جائے. کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, علامہ صاحب جزاک اللہ بہت شکریہ, اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, ہماری نشریات آپ حضرات سے سجتی ہے. اصل رونق علماء ہے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہدیہ عقیدت کے لیے ہمارے ساتھ ثنا خان رسول ہوں گے, بس اس وقفے کے بعد. کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے